Hello everyone, I'm Tiash Ghosh. Welcome to my YouTube channel Life Campus. Today we will discuss about lethal alleles. Lethal alleles are responsible for mortality. These alleles sometimes they are recessive, sometimes they are dominant. Some examples of lethal alleles are cystic fibrosis or Huntington disease. Lethal alleles are actually some alleles which are responsible for mortality. If we see the definition, it is when a genetic defect causes 100% mortality, it is termed as lethal allele. So, from the definition also we can see that it is responsible for 100% mortality. There are two types of lethal allele. One is called the recessive lethal allele and another one is dominant lethal allele. So, in recessive lethal allele, the lethal alleles are actually recessive alleles. And in dominant alleles, the lethal alleles are actually the dominant alleles. So, recessive allele genes can code for either dominant or recessive traits, but they do not actually cause death unless an organism carries two copies of lethal allele. Just like if the matter is capital T and small t, so from this case we can see it's heterozygous and one capital, that means dominant, one recessive, and another one is small t and small t, where we can see that both the alleles are recessive. So in that case only small t and small t, that will be a lethal allele because it is a recessive lethal allele. Only recessive characters will express, but capital T and small t, one heterozygous, will never express because it's a heterozygous. In that case, in recessive lethal allele, only recessive characters, only two recessive allele will express. Some examples are like cystic fibrosis, that is a disease, sickle cell anemia. These are some examples of lethal allele. Now, the next part, that is dominant lethal alleles, are expressed in homozygous as well as heterozygous. Yes, if the matter is capital T and small t, then it will express, because here the lethal allele is actually the dominant lethal allele. So capital T is the dominant character. If capital T is present, then it will be a lethal allele. If the matter is capital T, then also it will be a dominant lethal allele, because at least one dominant character, at least one dominant allele is required. If at least one dominant lethal allele is present, then it will have that disease. One example, that is Huntington disease, that is the famous dominant lethal allele. अगर मुझे जानना है कि लेथल एलील्स कैसे काम करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं रिसेसिव लेथल एलील, और एक क्रॉस के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि एक्चुअली रिसेसिव लेथल एलील्स कैसे काम करता है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिस्टिक फिब्रोसिस इज अ डिजीज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसेसिव लेथल एलील्स. So in that case, two alleles are there. One is small f, that is a cystic fibrosis allele, and capital F, that is a normal allele.
यहाँ पे सिस्टिक फिब्रोसिस जो है वो एक रिसेसिव लेथल एलील है, एक रिसेसिव लेथल एलील है, इसीलिए स्मॉल एफ यहाँ पे लिया गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो स्मॉल अल्फाबेट्स हैं वो एक्चुअली एक्सप्रेस करता है क्या, एक्सप्रेस करता है रिसेसिव कैरेक्टर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पेरेंट है, फर्स्ट पेरेंट में कैपिटल एफ स्मॉल एफ और सेकेंड पेरेंट में भी कैपिटल एफ स्मॉल एफ है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि दोनों ही हेट्रोजाइगस है। अब गैमेट प्रोडक्शन होगा कैपिटल एफ स्मॉल एफ, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, और इसके बाद जब हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो मेरे पास जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएंगे, वो ये हैं कैपिटल एफ स्मॉल एफ, कैपिटल एफ स्मॉल एफ एंड स्मॉल एफ। अब यहाँ पे क्या है कि कैपिटल एफ जो है ये तो नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो रिसेसिव एलील है वो है नहीं। अब ये जो कैपिटल एफ स्मॉल एफ है और कैपिटल एफ स्मॉल एफ है, इस केस में ये कैरियर है। कैरियर है क्यों? क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और दूसरा रिसेसिव लेथल एलील है जो कि स्मॉल एफ है। अब यहाँ पे ये जो स्मॉल एफ है वो एक्सप्रेस कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा? क्योंकि एक डोमिनेंट जीन है और डोमिनेंट जीन ही एक्सप्रेस करेगा यहाँ पे, तो इसलिए ये कैरियर है, क्योंकि इसमें वो लेथल एलील जो है वो प्रेजेंट है, मगर क्या है कि ये एक रिसेसिव कंडीशन में है, तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे एक्सप्रेस जो करेगा वो है कैपिटल एफ, तो इसलिए ये एक कैरियर है। और ये जो सिस्टिक फिब्रोसिस है वो स्मॉल एफ है, क्योंकि यहाँ पे ही ये जो सिस्टिक फिब्रोसिस जो डिजीज है वो एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो स्मॉल एफ है, मतलब दो रिसेसिव कैरेक्टर है, दो रिसेसिव लेथल एलील्स इसमें प्रेजेंट है, और यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट एलील्स है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे सिस्टिक फिब्रोसिस जो है वो एक्सप्रेस करेगा और बाकी किसी में ये नहीं करेगा। अब दूसरा केस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डोमिनेंट लेथल एलील्स में। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लेते हैं हंटिंगटन डिजीज। अब यहाँ पे ये रिसेसिव जैसा है नहीं, ये एक डोमिनेंट लेथल एलील है। इसका मतलब है कि एटलीस्ट एक डोमिनेंट एलील अगर मुझे मिल जाता है तो वहां पे वो जो डिजीज है वो एक्सप्रेस करेगा। यहाँ पे जो एलील्स है वो क्या क्या है देख लेते हैं। स्मॉल एच है जो कि एक नॉर्मल एलील है, और कैपिटल एच है जो कि हंटिंगटन डिजीज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एलील है वो है। अब यहाँ पे जो कैपिटल एच है या डोमिनेंट एलील है वही एक्चुअली लेथल एलील है। तो फर्स्ट पेरेंट में भी ये एक हेट्रोजाइगस है और सेकेंड पेरेंट में ये एक रिसेसिव होमोजाइगस है। मतलब एक जो है वो कैपिटल एच स्मॉल एच है जो कि एक हेट्रोजाइगस है, और स्मॉल एच जो है वो एक रिसेसिव होमोजाइगस है। अब इसके बाद ये सारे जो है वो गैमेट्स हैं, जो कि मिलेगा मुझे कैपिटल एच स्मॉल एच। अब इसके बाद जब हम क्रॉस करवाएंगे तो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मुझे मिलेंगे एलील्स में, ये न्यू ऑफस्प्रिंग में, वो ये है कि कैपिटल एच स्मॉल एच, कैपिटल एच स्मॉल एच और स्मॉल एच। मतलब कि रिसेसिव होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का जो रेशियो है वो 1:1 है, क्योंकि कैपिटल एच स्मॉल एच और स्मॉल एच इसका जो रेशियो है वो 1:1 है। अब यहाँ पे कैपिटल एच स्मॉल एच जो है वो हंटिंगटन डिजीज एक्सप्रेस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, तब वो एक्सप्रेस करेगा। अब क्या है कि अगर स्मॉल एच है उसमें एक्सप्रेस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट जीन है नहीं, और यहाँ पे डोमिनेंट जीन ही लेथल एलील है। अब तीसरा केस में देखते हैं, कैपिटल एच स्मॉल एच है,
मतलब यहाँ पे हंटिंगटन डिजीज जो है वो एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि एटलीस्ट एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, और लास्ट में स्मॉल एच में ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट लिथल एलील्स प्रेजेंट नहीं है। Thank you for watching this video. Please hit the like button if you like the video. Write in the comment section how effective this video is. Please subscribe the channel and hit the bell icon to get the notifications earliest.